Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 7 of CBSE from unit number 2, and the name of the poem is The Rebel, which is written by DJ Enright. Written by DJ Enright. So who is a rebel? A rebel refers to those people who are different from others. As a result, they get a lot of attention in the society. तो रेबल किसे कहते हैं? रेबल सोसाइटी में उन लोगों को कहते हैं जिसका ओपिनियन दूसरे लोगों से नहीं मैच करता, जिसके वजह से उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है. वो दूसरे लोगों के ओपिनियन को डिसएग्री करते हैं. So, rebel refers to a person who is very different from others. As a result, he or she gets lot of attention in this society. We consider the freedom fighters of our country as rebel because they did not want the invaders or Britishers to rule our country. As a result, they fought against them for freedom in order to provide our country freedom. As a result, they also became famous, like Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose, etc. In this poem, the poet wants to describe the character rebel as a person who does not follow the norms of the society, rules of the society, and contradicts others' opinion in order to show that he is different from others. At last, the poet also wants to convey a message that it's not easy to act as a rebel in a society, because if you act as a rebel or if you are a person of rebel in the society, you do not agree with opinion of others and many people are against you. So let us learn this poem in detail. Do you know anyone who disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite what everyone thinks they should do? Think, do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite what everyone thinks they should do? तो आप किसी को जानते हो जो आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंसान है, वो हमेशा आपसे अलग करना चाहता है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए. थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन. तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? रेबल बोलते हैं. डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज. नाउ रीड द पोएम. तो अपने दोस्तों के साथ बात करो कि रेबल अगर है तो वो कैसा इंसान है. सोचो कि गर्मी की मौसम है, आपको आइसक्रीम खाने की मन कर रहा होगा, लेकिन जो रेबल जो इंसान है उसको मन कर रहा होगा चाय पीने में गर्मी के मौसम में. तो रेबल उस इंसान को कहते हैं जिसका ओपिनियन क्राउड से, मतलब बहुत सारे लोगों से वो एक डिफरेंट इंसान होता है, उसका ओपिनियन एकदम डिफरेंट होता है या ऑपोजिट होता है. नाउ लर्न द पोएम इन डिटेल. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in a fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please,
the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. सोचो गर्मियों की मौसम चल रही है और हर किसी ने गर्मी के कारण अपना बाल काट दिया। जब हर किसी ने अपने बालों को एकदम छोटा छोटा करके काटा है, जब हर किसी का शॉर्ट हेयर है, उस टाइम में जो रेबल, जो इंसान है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो अपने बालों को लंबा बढ़ाना चाहेगा, वो अपने बालों को लंबा रखना चाहेगा। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. अगर रेबल देखेगा कि हर किसी का लंबा बाल है, तो थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए सबसे रेबल क्या करेगा? अपने बालों को एकदम छोटा छोटा करके काट लेगा। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. जब सारे बच्चे क्लास में बात कर रहे होंगे, तो रेबल जो एक स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा? वो एकदम चुपचाप से बैठ के टीचर को सुन रहा होगा, बिल्कुल क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब सभी को क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और सभी एकदम चुपचाप से क्लास में बैठ के सुन रहे होंगे, तो ये रेबल सभी को डिस्टर्ब कर रहा होगा। जब एकदम सब चुपचाप से बैठ के सुन रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे टीचर के ऊपर, तो रेबल उस टाइम पे क्या कर रहा होगा? डिस्टर्ब कर रहा होगा क्लास में। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. मान लीजिए कोई ऑफिस में जा रहा है, एक यूनिफॉर्म होगा, एक ड्रेस कोड होगा, तो जब हर कोई उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म पहन के जाता है, तो रेबल उस दिन क्या पहन के जाएगा? फैंटास्टिक क्लॉथ्स, यानी कलरफुल क्लॉथ्स, या कहो तो यूनिफॉर्म ना पहनते हुए कुछ सिविल ड्रेस पहन के जाएगा। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. मान लीजिए कि स्कूल में कोई फंक्शन है, जैसे कि गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, उस दिन में बच्चों को अलाउ है कि आप यूनिफॉर्म ना पहन के आप अपने से कुछ भी फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आ सकते हो। तो जब उस दिन सारे बच्चे एकदम यूनिफॉर्म ना पहन के अलग तरीके से ड्रेसअप होके आते हैं, तो उस दिन रेबल जो बच्चा होगा वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आएगा। तो when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. soberly यानी एकदम फॉर्मल मैनर में वो रेबल ड्रेसअप होके आएगा। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. अगर एक जगह पे 4-5 कंपनी, यानी जब 4-5 जन मिलके बात कर रहे होंगे और वो कुत्तों को तारीफ कर रहे होंगे, कुत्ता कितना अच्छा जानवर है, कितना सेफ्टी प्रोवाइड करता है अपने मालिक को, अगर 4-5 जन बात कर रहे होंगे और वो पेट डॉग का तारीफ कर रहे होंगे, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट। तो ये जो रेबल अगर वहाँ पे होगा तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा किसको? बिल्ली को, कि नहीं बिल्ली अच्छा है, डॉग्स इतने अच्छे नहीं हैं। When in the company of cat lovers, the rebels puts in good word for dogs. अगर झुंड में 4-5 जन बात कर रहे होंगे और वो किसका तारीफ कर रहे होंगे? बिल्ली का तारीफ कर रहे होंगे, ठीक है, तब अगर वो रेबल वहां पे होगा तो वो बोलेगा बिल्ली कौन सा जानवर है, वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा कि बिल्ली से ज्यादा डॉग अच्छा है। तो जब झुंड में लोग डॉग्स का तारीफ करते हैं तो रेबल प्रेफरेंस देगा कैट को, जब झुंड में लोग कैट का तारीफ करते हैं तो रेबल प्रेफरेंस देगा डॉग को। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर कोई मतलब सन का तारीफ कर रहे हैं, सोचो कि बारिश का मौसम है और अचानक से एक अच्छा एटमॉस्फेयर था एकदम, उस दिन मतलब सूरज निकला हुआ है
और जब लोग सन का तारीफ करते हैं, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ अ रेन, तो रेबल बोलता है तो बारिश का मौसम है, सन का आने की क्या ज़रूरत है, बारिश होने की ज़रूरत है। तो रेबल ऐसा रिमार्क करता है, व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। मान लीजिए कि समर सीजन खत्म होने वाला है और सब बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जब हर कोई इंतज़ार कर रहा है बारिश का, तो रेबल बुरा मान जाता है, क्यों रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, क्यों आज तेज धूप नहीं निकला। तो रेबल इज ऑलवेज अपोजिंग अदर्स ओपिनियन। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक द रेबल गोज टू द मीटिंग। जब हर कोई घर में बैठ के बुक्स पढ़ रहे होंगे तो रेबल जाएगा ऑफिस मीटिंग अटेंड करने के लिए। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रेबल सेज नो थैंक यू। जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, मान लीजिए मेरा बर्थडे है और मैं सभी को चॉकलेट ऑफर कर रही हूँ, तो सब बोलेंगे यस प्लीज, लेकिन जो रेबल है वो बोलेगा नो थैंक यू, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रेबल सेज यस प्लीज। जब मैं किसी को कुछ ऑफर कर रही हूँ और सब मना करेंगे नो प्लीज, तो रेबल बोलेगा यस प्लीज, तो रेबल बोलेगा यस मुझे वो चीज़ चाहिए। जब हर कोई एक चीज़ को ले रहे होंगे तो रेबल उस चीज़ को तब मना करेगा, और जब हर कोई एक चीज़ को मना कर रहे होंगे तो रेबल उस चीज़ को मांगेगा। इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो पोएट बोल रहे हैं कि सोसाइटी में रेबल होना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेके आ सके। लेकिन यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, अगर आप खुद एक रेबल हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रेबल वो इंसान है जो क्राउड के साथ नहीं जाता, यानी उसका ओपिनियन बहुत सारे लोगों से अलग होता है। अगर आप बहुत सारे लोगों के ओपिनियन से एग्री नहीं करते तो आप बहुत सारे लोगों का अगेंस्ट जाते हो, तो इसके वजह से आपका सोसाइटी में मतलब जीना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप दूसरों के साथ मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो। तो वही लास्ट पे पोएट कहना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। सोसाइटी में रेबल्स होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद एक रेबल हो तो ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम द रेबल। इफ़ यू गेट any benefit from this video, please like it, and if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational notifications which are being made in Odia, English, Hindi and Bengali language. Until then, keep learning, keep sharing, and thank you.